Assalamualaikum. My name is Sayyid Hamad Ali, and in this video I will guide you about the whole process of admission in Dow's University of Engineering and Technology for the batch 2021. So starting from the dates, the admission advertisement is expected to be announced the next week of August, and the test is expected to be held in the fourth week of September. The classes are expected to be started from the last week of October. So the eligibility criteria, firstly for the students coming from the pre-engineering inter background, they are eligible for all the BE discipline as well as the Bachelor of Science disciplines as well. And this time the test will be held the same for the BE and the BS programs. मतलब इस साल जो टेस्ट होगा वो BS और BE का अलग नहीं होगा जिस तरह पिछले सालों में होता था। इस साल टेस्ट एक ही दफ़ा और एक ही साथ होगा दोनों प्रोग्राम्स का। इस साल जो प्रोग्राम्स हैं हमारे पास वो डिपार्टमेंट वाइज हैं। मीन्स 8 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, केमिकल, मटीरियल एंड मेटलर्जी, पेट्रोलियम गैस इंजीनियरिंग, एनर्जी एनवायरनमेंट, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट and architecture department. The 4 BS departments are artificial intelligence and cyber security, which are the newly announced departments, and the previous BS departments are computer science and mathematics. So first of all, we start from the eligibility criteria. All students are from the pre-engineering background are eligible, and the students from the CS backgrounds are eligible in engineering fields of electronics, telecommunication, computer system engineering, as well as they are also eligible for all the BS departments. The students coming from the pre-medical background are only eligible for the BS departments, and the students coming from the diploma background are eligible for seats on the urban and rural basis, which are 4 in urban and 4 in rural in different departments, and they are also eligible for all the BS programs as well. So coming to the fees point of view, the fees for the Bachelors of Engineering programs is 24,000, whereas the admission fees for all the programs is 10,000. The fees for the computer science BS program is about 50,500, and for the cyber security and artificial intelligence program is 65,500, and for the BS mathematics department is about 30,500. तो सबसे पहला जो प्रोसेस है एडमिशन के हवाले से, जब आपकी एडमिशन एडवर्टाइजमेंट आ जाए नेक्स्ट वीक, तो सबसे पहले आपने जाके admissions.date.edu.pk पर जाके अपनी आईडी बनानी है पोर्टल पे अपने CNIC के थ्रू, और वहाँ पे जो फॉर्म होगा वो फिल आउट करना है। जब आप फॉर्म फिल आउट कर दें तो एट द एंड ऑफ द फॉर्म आपको एक चालान मिलेगा। वो चालान आप प्रिंट आउट करके सिंध बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑल ओवर पाकिस्तान आप जमा करा सकते हैं। जब आप फ़ीस जमा करा देंगे तो आपको फर्दर ऑन वेट करना है एडमिशन डेट, फॉर्म फिलिंग डेट क्लोज़ होने का। जब डेट क्लोज़ हो जाएगी तो उसके बाद जब टेस्ट डेट अनाउंस होगी उसमें आपका एडमिशन जो एडमिट कार्ड है, टेस्ट एडमिट कार्ड, वो आपके पोर्टल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। आप वहाँ से प्रिंट आउट करवा के टेस्ट देने जा सकते हैं। टेस्ट के जो पोर्शंस हैं वो 4 होंगे। 4 मीन्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश, जिसमें 25% आपके वेटेज होगा। मीन्स जो टोटल MCQs हैं आपका 100 है, तो 25 फिज़िक्स के, 25 केमिस्ट्री के, 25 मैथमेटिक्स एंड 25 इंग्लिश के। जो आपका टोटल टाइम होगा वो 120 मिनट्स होगा। कैलकुलेटर अलाउड होगा, और टेस्ट NED में होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा। इस साल जो नेगेटिव मार्किंग है वो कम है, मीन्स के 0.1 ऑन ईच रॉन्ग आंसर। मीन्स अगर आप 10 आंसर्स को रॉन्ग आंसर करेंगे तो आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा। ठीक है, आपके उन मार्क्स से जो आपने लिए होंगे। ठीक है, फर्दर ऑन जो आपकी सीट्स हैं वो आपके 138 सीट्स अर्बन में और 138 रूरल में, और उसके बाद 8 डिप्लोमा सीट्स हैं, और उसके बाद फर्दर ऑन आपके पास कैटेगरीज़ हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 2 कैटेगरीज़ में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 3 कैटेगरीज़ में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप BS में और BE में एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंध अर्बन और सेल्फ फाइनेंस में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आपको फॉर्म में टेक आउट करना है, अपनी जो भी कैटेगरी आपकी सिलेक्ट आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो 3 कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहता है तो वो भी वहाँ पे टेक आउट 3 कैटेगरीज़ को कर सकता है। ईयर गैप के हवाले से बात करें तो 22 मैक्सिमम एज लिमिट है ऑन द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ एडमिशन्स, कि आपका जो मैक्सिमम एज है वो 22 होनी चाहिए, और 2 ईयर मैक्सिमम गैप अलाउड है जो आप
दे सकते हैं अपनी इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी लाइफ के बीच में। इसके बाद आपको अलाउड नहीं किया जाता। आपकी जो CPN है, जो आपका एग्रीगेट है, फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट दे दिया, आपके टेस्ट मार्क्स आ गए, उसके बाद जो आपका एग्रीगेट बनेगा वो आपका 10% मैट्रिक के मार्क्स, 40% इंटरमीडिएट के मार्क्स, 50% टेस्ट के मार्क्स आपके इंक्लूड करके एक CPN बनाया जाता है, एग्रीगेट बनाया जाता है, जिसकी बुनियाद पे आपकी मेरिट लिस्ट अनाउंस होती है। ठीक है, इसके बाद जो फर्दर प्रोसेस है वो जब आपने टेस्ट दे दिया, आपकी मेरिट लिस्ट अनाउंस हो गई, आपने मेरिट लिस्ट अनाउंस होने से पहले आपके टेस्ट देने के बाद आपसे मार्क्स सबमिशन डेट दी जाएगी आपको, जो आपके इंटरमीडिएट रिजल्ट आएगा वो आप वहाँ पे सबमिट करेंगे पोर्टल पे अपने मार्क्स, और मार्कशीट सबमिट अपलोड करेंगे, और फर्दर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करेंगे। इसका फर्दर स्टेप ये है कि मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग इंटरव्यूज़ के लिए कॉल किया जाएगा, और फर्दर आपको अगर आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो आप फ़ी पे करके अपना भी जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है उसमें आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी। ये आपका एडमिशन प्रोसेस था। होप सो कि आप समझ गए होंगे पूरा प्रोसेस और कोई आप कंफ्यूजन नहीं रही होगी। इसके अलावा भी आपके जो क्वेश्चन आंसर अभी भी मौजूद हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनके आंसर करने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।